एवरीवन, आज की वीडियो का लेक्चर है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ पार्ट थर्ड। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन डिटेल डिस्कस किया। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस ऑन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights are a very important topic in the polity section of the exams. It is a basic static portion of the syllabus of both human rights and political science, but it is highly dynamic in the sense that it is featured in the daily news in some form or the other. Hence, it is highly important for the exam preparation. Basically, part third, पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फोर्थ ए एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इन पार्ट से रिलेटेड ज़रूर पूछे जाते हैं। सो आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे एंड इन अदर वीडियोस वी विल फॉलो विद दीज टू पार्ट्स। सो लेट्स बिगिन। इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दीज आर द पार्ट्स विच हैज देयर ओन contains, like part 4th A, fundamental duties, 5th, 6th, 7th, 8th. You can glance through this. Part 7th, repealed by 7th Amendment, and the part 8, 9, 9th A. All these are the parts of Indian Constitution. That's the reason कि Indian Constitution world का largest constitution consider किया जाता है। Currently जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया का उसके अंदर 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। देयर आर 104 अमेंडमेंट जो अब तक मेड किए गए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सबसे पहला अमेंडमेंट था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1950। पार्ट 7th डिलीटेड बाय द 7th अमेंडमेंट एज आई टोल्ड यू। ऑन द अदर हैंड पार्ट 4th ए एंड 14A added किया गया by 42nd Amendment Act. These are the general awareness regarding the Constitution. So, the origin of fundamental rights. Fundamental right borrowed किया गया from the Bill of Rights, from the Constitution of Bills of Rights. Fundamental rights को Magna Carta of India से के नाम से भी जाना जाता है। Magna Carta came in 1215 and it was world's first written document related to rights of the citizen. So, the fundamental rights as a constitutional guarantees of recent origin, that is the Declaration of Rights of Man, was adopted by the French National Assembly in 1789. And the Constitution of USA incorporated a chapter in fundamental right with the inspiration of Bal Gangadhar Tilak. स्वराज बिल ऑफ 1895 में विजुलाइज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जो गारंटी करता था बेसिक राइट टू एवरी सिटीजन। नेहरू कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1928 सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग कल्चरल एंड रिलीजियस राइट। The Sapru Committee report on constitutional proposal in 1945 supported the idea of inclusion of fundamental rights. In this way, fundamental rights has been incorporated in our constitution. So, making of Indian Constitution, B.N. Rao visited the USA to get an idea for fundamental rights. There he met Justice Frankfurter of American Supreme Court, who advised him not to include due process of law as in US Constitution, and its place procedure established by law was opted. So, how far are human rights embodied in the Constitution of India? As I have discussed in the previous video कि जो makers थे Indian Constitution के, they are very much awake for human rights from the very beginning. UN Declaration से in UDHR 1941 were placed in the Indian Constitution by the Constitution makers. Following rights may be categorized as rights in the Indian Constitution. So ये जो फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाने जाते हैं, इन दिस वे दे हैव इनकॉर्पोरेटेड बाय द ह्यूमन राइट्स। देयर आर 6 आर्टिकल्स, 7 आर्टिकल्स थे पहले फंडामेंटल राइट्स में, बट राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दे आर
right to property is a legal right now, because this right was removed from the list of fundamental right by the 44th constitutional amendment. ऐसा इसलिए हुआ था because this right proved to be a hindrance towards attaining the goal of socialism and redistribution wealth equitably among the people. So the right to property is now a legal right and not a fundamental right. बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है, और अगर लीगल राइट है तो पहले फंडामेंटल राइट था तो क्यों हटाया गया. सो दिस वाज द रीजन कि इट वाज making obstacle to make achieving or attaining the goal of socialism and redistribution of wealth. You can have such answer in the question. So here the right to equality. From Article 14 to 18 of the Constitution, right to equality follow किया जाता है. Article 14 कहता है equality before law, सबको equal माना जाएगा before law. No one will be get any favoritism. Article 15 talks about equal protection of laws, सबको equal protect किया जाएगा by the law. Equality in opportunities. Article 14 से लेके 18 तक it talks all about equality, कि equal before law होना चाहिए, equal protection होना चाहिए, equality in opportunities, like no one will be discriminated on the basis of caste, social, any way in having jobs. Eradication of untouchability. By Article 17 talks about abolish of untouchability. Untouchability through Article 17 के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल प्रैक्टिस ना हो. Eradication of titles by the Article 18. So right to freedom. In Article 19, 6 different types of freedoms have been accorded किए गए. Article 19 में कि freedom of speech होना चाहिए, peacefully assembly without arms, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of the territory, and these all are the right to freedom included in Article 19. Article 20, protection in respect of conviction for offences. मतलब कोई भी person convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charge, like no person should be prosecuted and punished for the same offense more than once. Protection in respect of conviction for offenses. Article 20 में ये बोला जाता है कि कोई भी जो क्रिमिनल है या जिसको भी एज अ प्रोसिक्यूटेड और पनिश किया गया उसको एक ही गलती पे दोबारा नहीं पनिश किया जा सकता. नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शॉल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. लाइक अगर वो प्रोड्यूस करता है कोई भी विटनेस, मतलब उसको फोर्स या कोई रिपेल किया जाता है कि अपने अगेंस्ट विटनेस करो, तो वो भी no person accused of any offense should be compelled to be a witness against himself माना जाएगा and not be included in that way. So cannot claim and witness against himself. So right to life. Article 21 gives the right to life and liberty to a person, और Article 22 prohibit करता है arbitrary arrest of persons. Article 19, Article 14 and Article 21, ये 3 आर्टिकल जो 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. These 3 आर्टिकल्स, रिमेंबर आर्टिकल 14, 19 एंड 21, इनको इसलिए गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है बिकॉज ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 19 इज द फर्स्ट आर्टिकल जो सस्पेंडेड हुआ था, और आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. This is the reason that it is known as golden triangle of the constitution. ये as a horse, as a GK, as a general knowledge के बेस पे MCQ में आ सकता है. आर्टिकल 21A ये बाद में
थ्रू द 86 अमेंडमेंट इन 2002 से ऐड किया गया फंडामेंटल राइट की राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट माना जाएगा, एंड एवरी स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स नहीं होना चाहिए, फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, और 24 प्रोवाइड करता है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैज़ार्डियस वर्क. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक रिलीजियस फ्रीडम को बताया गया है कि कैसे एवरीवन हैज़ द फ्रीडम टू प्रोपोगेट प्रोफेस एनी रिलीजन. अपना रिलीजन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपना रिलीजन अटेनमेंट मतलब एनीथिंग दे कैन डू रिगार्ड टू द रिलीजन. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. आर्टिकल 29, ये नेट के एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन. Don't get confused in these two articles. आर्टिकल जो 29 है वो करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 minorities has been granted the right of education and his cultural freedom. ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है, पर प्रोटेक्शन जो इंटरेस्ट करता है माइनॉरिटीज का वो आर्टिकल 29 में है, और आर्टिकल 30 में राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में और उनके कल्चर फ्रीडम के बारे में बताया गया है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. दिस डन बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स करता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स. इसके अंदर रिट्स होते हैं एंड दे आर रिटन बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, एंड दैट हैज टू बी एम्पावर्ड कि प्रॉपरली फंक्शन और मैकेनिज्म को फॉलो आउट किया जाए. सो ये 5 फॉर्म्स ऑफ रिट्स हैं. हैबिस कॉर्पस, इट लिटरली मीन्स टू हैव अ बॉडी, दैट इज कि आपको प्रोड्यूस मतलब इफ द पर्सन इज अरेस्टेड, तो ये हैबिस कॉर्पस के थ्रू से इट इज़ अ राइट कि आपको वो बिफोर द कोर्ट उसको प्रोड्यूस करना ही है. दिस काइंड ऑफ रिट इज इशूड टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स. रिमेंबर, हैबिस कॉर्पस मतलब टू हैव अ बॉडी, मतलब आपको प्रेजेंट करनी है, उस इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना है बिफोर द कोर्ट आफ्टर द अरेस्ट. Mandamus, it literally means command. In this kind of writ, ये अगेंस्ट किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी के और अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी और एन ऑफिसर की एन इंफीरियर कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग लीगल राइट्स ओनली, कि अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो आप इशू कर सकते हैं मैंडेमस रिगार्ड टू दैट एन ऑफिसर. प्रोहिबिशन, इट मीन्स टू रिस्ट्रेन, and this kind of writ is issued by the higher courts to the lower courts or the quasi judicial bodies. जब ये later exceed हुए कि judicial authority का मतलब discrimination prohibition हो. Certiorari, this writ is issued to quash the order of a lower court or the decision of a tribunal in excess of its jurisdiction. Quo warranty, it means what is your authority. ये रिट से आप इशू कर सकते हैं टू इंश्योर जो पर्सन होल्ड कर रहा है पब्लिक ऑफिस वो क्वालिफाइड है टू होल्ड द ऑफिस और नॉट. दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड in the next video we will going to have the directive principle of state policy to discuss in detail. Thank you so much for watching this video.